یہ ایک واقعہ ہے۔ ملک یمن میں ایک دولت مند آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام تھا خواجہ بشیر۔ خواجہ بشیر نہایت عقل مند، سمجھدار اور پڑھا لکھا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا آنا جانا بادشاہ کے دربار میں ہو گیا اور بادشاہ بھی اسے پسند کرنے لگا، کیونکہ وہ ہمیشہ بادشاہ کو اچھی اچھی باتیں بتایا کرتا اور رعایا کی خوشحالی اور بہتری کی تدبیریں سمجھایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کو خواجہ بشیر پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ کسی امیر اور وزیر پر اتنا بھروسہ نہیں تھا۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ سب سے پہلے خواجہ بشیر سے مشورہ کرتا۔ ہمیشہ ہی بادشاہ نے محسوس کیا کہ خواجہ کا مشورہ ہمیشہ ہی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ بادشاہ نے محل کے پہرے داروں، غلاموں اور سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ خواجہ بشیر جب چاہے شاہی محل میں آ جا سکتا ہے اور اسے کوئی نہ روکے، اور ہر کوئی اس سے عزت اور احترام سے پیش آئے۔ یہ صورتحال بادشاہ کے وزیر کو ناگوار گزرتی تھی۔ بادشاہ کا وزیر ایک مکار اور کینہ پرور شخص تھا۔ اسے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی تھی کہ بادشاہ اپنے وزیر کی بجائے خواجہ بشیر پر اعتبار کرتا ہے اور تمام معاملات پر خواجہ بشیر سے مشورہ کرتا ہے۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ کے دل میں خواجہ بشیر کے لیے نفرت بھر دینی چاہیے۔ کافی سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے بادشاہ کے کان خواجہ بشیر کے خلاف بھرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن جب بادشاہ اکیلے تھا، مکار وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے کہا، بادشاہ کا اقبال بلند ہو اور آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رہے۔ سلطنت کو روز پر روز ترقی نصیب ہو اور تخت و تاج کی عظمت برقرار رہے۔ یہ غلام کئی دنوں سے ایک بات پر پریشان ہے اور حضور سے اسی سلسلے میں بات کرنے کا خواہش مند ہے۔ اگر اجازت عطا فرمائی جائے تو عرض کروں؟ اجازت ہے، بادشاہ نے کہا۔ مکار وزیر نے کہا، عالیجا، دو باتیں ایسی ہیں جو سلطنت کے لیے خرابی کا باعث بن سکتی ہیں اور ان سے خود حضور کا تخت و تاج بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ حضور، پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ واقعی ہی عزت اور احترام کے حقدار ہوں انہیں وہ عزت نہ دی جائے اور ان کا احترام نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ ادنا درجے کے ہوں اور اس قابل نہ ہوں کہ جنہیں بادشاہ منہ نہ لگائے، انہیں نچلے درجے سے اٹھا کر اونچے درجے پر بٹھا دیا جائے۔ بادشاہ انہیں اپنے قریب بٹھانے لگیں اور ہر معاملے پر انہی سے مشورہ کرنے لگیں۔ یہ لوگ چونکہ ادنا ذہن کے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے کسی اچھے مشورے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہم سمجھے نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے پریشان ہو کر کہا، ذرا کھل کر بات کرو۔ حضور، گستاخی معاف، میرا اشارہ خواجہ بشیر کی طرف ہے، جسے حضور نے خواہ مخواہ عزت دار بنا دیا ہے، اور جب تک کسی معاملے پر خواجہ بشیر مشورہ نہ دے آپ اس پر عمل نہیں فرماتے۔ شاید عالم پناہ کو معلوم نہیں، یہ شخص بہت مکار، دھوکے باز اور لالچی ہے۔ شہر کا بچہ بچہ اس کی برائیوں سے واقف ہے۔ آپ خود اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی شخص آپ کا دوست ہو تو اس بات کا رعایا پر کیا اثر پڑے گا۔ بادشاہ نے بڑے غور سے اس کی باتیں سنی اور پھر کہا، یہ تم کیا کہتے ہو؟ کیا ہم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے کہ اچھے برے، ادنا اور اعلیٰ آدمی میں فرق کر سکیں؟ جہاں تک ہم نے دیکھا اور پرکھا ہے، خواجہ بشیر نہایت عقل مند، ادب سے اور سمجھدار انسان ہے، اور ہمیں اس پر پورا بھروسہ ہے۔ آج تک اس نے ہمیں جو بھی مشورے دیے وہ پورے مفید ثابت ہوئے۔ ہم نے کئی بار اس کی آزمائش کی ہے اور ہر بار ہم نے اسے کھرا اور سچا ثابت پایا ہے۔ تم نے ان کے خلاف جو الزامات لگائے ہیں، اب تمہارا حق ہے کہ انہیں صحیح ثابت کرو، ورنہ ہم تمہیں ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گے۔ یہ سنتے ہی وزیر کا خون خشک ہو گیا اور چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور فوراً بادشاہ کے قدموں میں گر گیا اور پھر بادشاہ سے معافی مانگ کر وہاں سے رخصت ہوا۔ وزیر ہانپتا کانپتا اپنے مکان تک پہنچا اور ٹھنڈے پانی کے کئی پیالے پیے۔ تب کہیں جا کر اس کے اعضا بحال ہوئے اور اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ تو میں نے خود مصیبت مول لے لی۔ اس کم بخت کو کیا خبر تھی کہ خواجہ بشیر نے بادشاہ پر ایسا جادو کر رکھا ہے کہ اس کے خلاف کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ اب اگر میں نے خواجہ کے خلاف الزامات کو صحیح ثابت نہ کر سکا تو بادشاہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جیسے جیسے وزیر اس بات پر غور کرتا، اسے اپنی جان کے لالے پڑتے ہوئے نظر آتے۔ اب اس نے ذہن لڑانا شروع کیا کہ ایسی کون سی باتیں ہو سکتی ہیں جن سے خواجہ بشیر کو بادشاہ کی نظروں میں گرایا جا سکتا ہے۔ سوچتے سوچتے آخرکار شیطان نے اس کے کان میں ایک تدبیر پھونک دی۔ اس شہر میں 70-80 سال کی ایک بوڑھی رہتی تھی، مکار اور چالاکی میں لاجواب، اگر کہو تو آسمان سے تارے توڑ لائے۔ سب اسے فا کٹنی کہتے تھے، اس کے کانٹے کا منتر ہی نہ تھا۔ وزیر نے اپنا ایک آدمی بھیج کر اس کٹنی کو اپنے پاس بلوایا۔ وہ فوراً حاضری ہوئی
और वजीर को लाखों दुआएं देकर बोली, सरकार, आज तो मेरी किस्मत जाग गई। हुजूर ने मुझे क्यों कर याद फरमाया? वारी जाऊं, हुजूर के चेहरे पर परेशानी नजर आती है। क्या कोई मुसीबत हुजूर के दुश्मनों पर आ पड़ी है? हाँ अम्मा जान, कुछ ऐसी ही बात है, वजीर ने कुटनी से कहा। बादशाह का एक मुसाहिब ख्वाजा बशीर मेरी जान का दुश्मन हुआ है। उसे नीचा दिखाने के लिए फिक्रमंद हूँ। मैंने बादशाह से कहा, यह इंसान बहुत घटिया है और आपका मुसाहिब बनने के अहल नहीं, मगर मेरी एक न सुनी और कहने लगे कि अगर तुमने अपनी बातों का सबूत न दिया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब अम्मा जान, मेरी इज्जत व आबरू, मालो जान, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। कोई ऐसी तदबीर करो जिससे ख्वाजा बशीर बादशाह की नज़रों में जलील हो जाए, फिर मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। ए हुजूर, मेरी जान आपके कदमों पर निसार। बूढ़ी ने वजीर को कहा, कोई एक तदबीर कहो तो हजारों तदबीर ख्वाजा बशीर के खिलाफ करूं। अब आप इत्मीनान से अपने महल में आराम फरमाइए और बाकी का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। चालाक बुढ़िया ने अगले दिन फटे पुराने चीथड़े अपने बदन पर लटकाए और लाठी टेकती, झुर्रियों भरी गर्दन हिलाती आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा बशीर के मकान पर पहुंची। मकान में घुसने का इरादा किया तो दरबान ने डांट कर रोका। ओ बूढ़ी, कौन है तू और कहां जाती है? बूढ़ी ने नफरत भरी नजरों से दरबान की तरफ देखा और फिर चिल्लाकर उससे कहा, अरे मुए, तेरा सत्यानाश हो, तुझे बावला कुत्ता काटे। तुम देखते नहीं हम ख्वाजा बशीर की बेगम से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। ये कहकर बूढ़ी ने दरबान को धक्का देकर अंदर जाने की कोशिश की, मगर दरबान ने झल्लाकर बूढ़ी की लाठी पकड़ ली और कहने लगा, बड़ी बी, तुम्हें क्या कहूँ, मेरी नानी अम्मा की उम्र की हो, इसलिए लिहाज कर गया, वरना कोई और इतनी गाली मुझे देता तो मार मार कर कचूमर निकाल देता। ख्वाजा बशीर की बेगम इस वक्त मकान में मौजूद नहीं और ना ही उनकी बेगम किसी गैर औरत से मिलती मिलाती है, इसीलिए ठंडे ठंडे अपना रास्ता नापो, वरना मुझे सख्ती से काम लेना पड़ेगा। इतना कहना था कि बूढ़ी ने वो हंगामा मचाया कि खुदा की पनाह, लाठी जमीन पर फेंक दी और खुद ज़बह किए हुए मुर्गी की तरह जमीन पर लौटने लगी। साथ साथ भयानक आवाज में चिल्लाती जाती थी, अरे लोगो, गजब खुदा का, ये 2 टके का आदमी मुझे मार रहा है, अरे बचाओ मुझे इस मूजी से, ये मुझे मार डालेगा, या इलाही, इस पर अजाब टूटे, अभी खड़े खड़े दम निकल जाए इसका, हाय हाय, मेरी तो हड्डियां तोड़ दी जालिम ने, मेरे बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे? बूढ़ी की आवाज सुनकर बहुत से राहगीर जमा हो गए और दरबान को लताड़ने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती इस बूढ़ी पर हाथ उठाते हुए। दरबान हैरान और परेशान अपनी जगह पर खड़ा बूढ़ी को देख रहा था। उसने कस्में खाकर लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि बूढ़ी मक्कर कर रही है, झूठ बोल रही है। मैंने उसे मारना तो दूर, उंगली तक नहीं लगाई, लेकिन बेचारे दरबान की बात किसी ने न सुनी। आखिर इस बात की खबर ख्वाजा बशीर की बीवी को भी हुई। उसने उसी वक्त 2-3 कनीज़ों को दरवाजे के बाहर भेजा और हुक्म दिया कि इसी वक्त इस बूढ़ी को मेरे पास लेकर आओ और इस दरबान से जाकर कहो कि आइंदा इसने किसी बूढ़ी औरत पर हाथ उठाया तो अपनी नौकरी से जाता रहेगा। कनीज़ों ने आनन फानन टुंडा डोली करके मक्कार बूढ़ी को बेगम की खिदमत में पहुंचा दिया। उसने बूढ़ी को रोते पीटते और फटे पुराने कपड़ों में देखा तो उसे बहुत तरस आया। कहने लगी, बड़ी बी, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि दरबान ने तुमसे गुस्ताखी की, फरमाइए कैसे आना हुआ? ए बेटी, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तेरा सुहाग कायम रहे। मुद्दत से ख्वाजा बशीर का नाम सुनते आ रहे हैं, ये बड़ा सखी है। बेटी, मैं एक मुसीबत ज़दा औरत हूँ, छोटे छोटे बच्चों का साथ है और कमाने वाला कोई नहीं, भीख मांगने की आदत नहीं। सोचा था कि आज ख्वाजा बशीर के पास जाऊं और उससे मदद की दरख्वास्त करूं, लेकिन क्या खबर थी कि रईसों ने ऐसे ऐसे कुत्ते पाल रखे हैं जो गरीबों को काट खाने दौड़ते हैं। बेटी, मैं अब तुमसे क्या कहूं, कहते हुए भी शर्म आती है। कभी हम भी पैसे रुपए वाले थे, मेरा शौहर लाखों में खेलता था, जिंदगी बड़े आराम से गुजरती थी। नागहां एक दिन मेरा शौहर घोड़ा गाड़ी के नीचे आकर कुचला गया। उसके बाद सारा माल और दौलत और जायदाद धोखेबाजों ने हथिया ली और हमें कौड़ी को कौड़ी के लिए मोहताज कर दिया। जब तक मेरे हाथ पांव में जान रही, मैंने मेहनत मजदूरी की और अपने बाल बच्चों का पेट भरा, लेकिन अब मैं कई महीनों से बीमार हूँ, काम काज करने के काबिल नहीं, फाकों पर फाके होने लगे, तब मजबूर होकर घर से निकली हूँ। इतनी दास्तान सुनकर बूढ़ी ज़ारो कतार रोने लगी। ख्वाजा बशीर की बीवी इतनी नेक और रहमदिल औरत थी कि बूढ़ी की कहानी सुनकर वो भी आंसू बहाने लगी। बूढ़ी ने कहानी घड़ी ही ऐसी थी कि कोई भी सुनकर आंसू बहाए बगैर नहीं रहता था।
आखिर उसने बूढ़ी से कहा, बड़ी अम्मा सब्र करो, खुदा जो भी करता है बेहतर ही करता है। दुनिया की दौलत तो आने जाने वाली चीज़ है, मुमकिन है कि खुदा तुम्हें फिर मालदार बना दे। अफसोस कि मेरा शौहर घर में मौजूद नहीं, वरना उसकी इजाज़त से मैं तुम्हें इतनी रकम और दौलत देती कि तुम्हारी तमाम ज़िंदगी तुम्हें किसी और के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत महसूस ना होती। तुम यहाँ इत्मीनान से बैठो, मेरा शौहर बादशाह से मिलने गया है, शायद अभी थोड़ी देर में वापस आ जाए। मक्कार बूढ़ी सारा दिन उस मकान में रही। इत्तेफाक से ख्वाजा बशीर शाम तक घर वापस ना आया। जब शाम का अंधेरा फैलने लगा तो मक्कार बूढ़ी ने कहा, ऐ नेक बेटी, तुम्हारा शौहर तो अभी तक वापस नहीं आया। उधर मेरे बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे होंगे। कोई ऐसा भी तो नहीं जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों के हल्क में 2 कतरे पानी की बूंद ही टपका दे। अब मुझे इजाज़त दो, मैं फिर कभी आऊँगी। ये सुनकर ख्वाजा बशीर की बीवी ने एक बहुत कीमती चादर जो बादशाह ने ख्वाजा बशीर को तोहफे में दी थी, बूढ़ी को दे दी और कहा, बूढ़ी अम्मा, इस वक्त तो तुम ये चादर ले जाओ। इसके किनारों पर कीमती मोची लगे हैं। अगर तुम इसे बाजार में ले जाकर बेच दो तो तुम्हें 1000-2000 मिल जाएंगे। तुम कल सुबह ज़रूर आना, इस वक्त मेरा शौहर घर पर ही होगा, फिर मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दिलवाऊंगी। बूढ़ी ने वो चादर लपेटी और बेगम को सैकड़ों दुआएं देती हुई वहां से चली। वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश थी। उसका ख्याल था कि जब वो चादर ले जाकर वजीर को दिखाएगी, वो खुशी से उछल पड़ेगा और अपने वादे के मुताबिक वो उससे मुंह मांगा इनाम हासिल कर लेगी। कटनी सीधी वजीर के महल में गई और उसके आगे चादर फेंकते हुए बोली, लीजिए हुजूर, आपके इकबाल से कामयाबी पा गई। मैंने बड़ी कोशिश के साथ ये चादर हासिल की है, बल्कि खुद ख्वाजा बशीर की बीवी ने ये चादर मुझे दी है। वजीर खुशी से नाचने लगा और उस चादर को अपनी बगल में दबाकर बूढ़ी से फिसलते हुए अपने महल से निकला और शाही महल की तरफ चल पड़ा। और महल में पहुंचकर उसने अपने आने की इत्तला बादशाह को दिलवाई। बादशाह ने यह सोचकर कि शायद वो उससे कोई ज़रूरी बात करने आया है, फौरन उसे बुला लिया। कहो, क्या कहना चाहते हो? बादशाह ने कहा। वजीर ने बादशाह को चादर दिखाते हुए कहा, आलम पना, ये वही चादर है ना जो आलम पना ने ख्वाजा बशीर को दी थी? बादशाह ने चादर को गौर से देखा और फिर बोला, हाँ हाँ, ये वही चादर है जो हमने ख्वाजा बशीर को दी थी, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? मक्कार वजीर बोला, ख्वाजा बशीर ने ये चादर अपनी बीवी को दी थी और वो इस चादर को बाजार में इधर उधर बेचती फिर रही थी कि मेरी नज़र इस चादर पर पड़ गई। मैं हुजूर के तोहफे की इस तरह से बेकदरी बर्दाश्त न कर सका और इस चादर को लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। बादशाह ये बात सुनकर हैरान हो गया। जब वजीर ने देखा कि तीर निशाने पर बैठा है तो सलाम करके वहां से रुखसत हो गया। बादशाह ने सोचा, अगर वजीर की बात सच निकली तो वाकई ख्वाजा बशीर बहुत घटिया आदमी है। वो उसे दिए गए कीमती तोहफों के साथ ऐसा सलूक करता है, इसे इन तोहफों की कोई कदर नहीं। और दूसरी तरफ उसे ये एहसास हुआ कि ख्वाजा बशीर इस कदर नीच नहीं हो सकता। इसी ख्याल में बादशाह को नींद आ गई। सुबह उठते ही बादशाह ने पहला काम ये किया कि ख्वाजा बशीर को महल में बुलवाया। इतनी सुबह बादशाह ने कभी उसे तलब नहीं किया था। बेचारे ख्वाजा ने सोचा, मुमकिन है बादशाह सल्तनत के किसी अहम मामले पर बात करना चाहता हो और इसलिए उसे ज़्यादा इंतज़ार करना उसके लिए मुश्किल हो। वो उस वक्त जिस हालत में था उसी हालत में भागम भाग बादशाह के पास पहुंचा। आलम पनाह, गुलाम हाजिर है, ख्वाजा बशीर ने बादशाह को झुककर सलाम करते हुए कहा। बादशाह ने वही चादर जो वजीर लाया था ख्वाजा की तरफ फेंकते हुए कहा, गौर से पहचानो, ये चादर किसकी है? ख्वाजा ने पहली नज़र में पहचान लिया कि ये चादर वही है जो बादशाह ने उसे तोहफे में दी थी, लेकिन वो हैरान था कि ये चादर बादशाह तक कैसे पहुंची। बादशाह गुस्से से चिल्लाया, अब पता चला कि तुम्हारी असलियत क्या है। ये चादर जो हमने तुम्हें तोहफे में दी थी वो तुम्हारी बीवी ने वजीर के हाथ वापस भेज दी। बादशाह की ये बात सुनकर ख्वाजा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कोई और होता तो वो उसे मौत के घाट भी उतार सकता था, लेकिन वो बादशाह के सामने खड़ा था। उसे ये मालूम था कि ये सब वजीर की शरारत है और उसने बादशाह की नज़रों में उसे गिराने के लिए ही ये हरकत की है। ख्वाजा को अपनी बीवी के बारे में भी ये मालूम था कि वो एक लम्हे के लिए भी घर से बाहर नहीं गई, फिर वो इस बकवास पर कैसे यकीन कर लेता। उसने निहायत ठंडे लहजे में बादशाह को समझाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह का पारा चढ़ा हुआ था। उसने ख्वाजा की किसी बात पर कान न धरा और फौरन जल्लाद को हुक्म दिया, ले जाओ फौरन इस नीच आदमी को मेरे सामने से और इसे कत्ल कर दो। इसकी सज़ा यही है, इसने हमारे दिए गए तोहफे से हकारत की हरकत की है। तमाम दरबारी ये हुक्म सुनकर दम बखुद रह गए।
और उनमें से कुछ ऐसे थे जो ख्वाजा बशीर को अच्छी तरह जानते थे कि वो निहायत ईमानदार और नेक आदमी है, और उन्हें वजीर के बारे में भी पता था कि वो ख्वाजा बशीर से हसद करता है, लेकिन बादशाह के सामने किसी को लब तक हिलाने की जुर्रत न थी। जल्लाद ने ख्वाजा बशीर का बाजू पकड़ा और दरबार से बाहर ले गया। वो भी ख्वाजा बशीर का बहुत एहतराम करता था। उसने ख्वाजा बशीर के कान में कहा, घबराइए मत, मैं आपको इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कत्ल नहीं करूंगा। मुझे इल्म है कि बादशाह ने जल्दीबाजी में आकर आपके कत्ल का हुक्म दिया है। मैं आपको अपने घर में ले जाकर छुपा दूंगा, फिर मौका देखकर बादशाह के सामने आपकी जान बख्शी की अर्जी की जाएगी। इधर तो बादशाह ने ख्वाजा बशीर को मौत की सज़ा सुनाई, और उधर ख्वाजा बशीर के एक दोस्त ने उसकी बीवी तक ये खबर पहुंचाई और उस चादर का किस्सा भी कहा कि किस तरह से बादशाह ने उस पर चादर बेचने का इल्ज़ाम लगाया। ख्वाजा की बीवी ने कहा, खुदा गवाह है कि वो चादर मैंने एक बेकस और मजबूर औरत को दी थी। मैं समझती हूँ कि ये खुदा की तरफ से मेरी और मेरे शौहर की आजमाइश हुई है। इंशाअल्लाह खुदा की इस आजमाइश पर हम पूरा उतरेंगे। ख्वाजा बशीर का दोस्त उसकी बीवी की बातों पर आमला खरी कहता हुआ वहाँ से रुखसत हुआ। उसके जाने के बाद ख्वाजा बशीर की बीवी ने अपने चेहरे पर निकाब डाला और सीधी बादशाह के दरबार में पहुंची। उस वक्त वजीर भी वहीं पर मौजूद था। बेगम ने जाते ही गवाही दी, इंसाफ इंसाफ, ए रहमदिल बादशाह, मैं तुमसे इंसाफ की भीख मांगने आई हूँ। ए औरत, बता तुझे किसने तकलीफ पहुंचाई, हम पूरा इंसाफ करेंगे। बादशाह ने कहा, आलम पनाह, आपके वजीर ने मुझे धोखा दिया है। मैं पिछले 15 बरस से आपके वजीर की बीवी हूँ। इसने मुझे वादा किया था कि वो हर रोज़ मुझे खर्च के लिए 900 रुपये दिया करेगा, लेकिन इस धोखेबाज शख्स ने आज तक मुझे एक ढीला भी नहीं दिया और हर रोज़ मुझ पर नित नए जुल्म ढाता रहता है। आज मैं बड़ी मुश्किल से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। बादशाह ने वजीर से कहा, इस औरत ने तुम पर जो इल्ज़ाम लगाया है, इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है? वजीर ने हाथ बांध कर कहा, आलिया, ये औरत झूठी है। मैं आपके सर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने आज से पहले इस औरत को कभी नहीं देखा, और ना ही मैं ये जानता हूँ कि ये औरत कौन है। हुजूर, वजीर ने आपके सर की कसम खाकर कहा है कि वो मुझे नहीं जानता और आज से पहले उसने मेरी शक्ल तक नहीं देखी। उसे हुक्म दीजिए कि उसने जो कुछ भी कहा है वो एक कागज़ पर लिख दे, ताकि बाद में मुकरने की गुंजाइश न रहे। इतना कहकर उस औरत ने अपने चेहरे से निकाब उलट दिया और कहने लगी, इस मक्कार वजीर से कहिए कि मेरे चेहरे को गौर से देख ले और लिख कर इनकार करे कि मैं उसकी बीवी नहीं हूँ और मैं उसे नहीं जानता। वजीर ने कागज़ पर फौरन ये इबारत लिख दी, ये औरत झूठी है और ये मेरी बीवी नहीं है। जब ये तहरीर वजीर ने लिख दी तो औरत ने बादशाह से कहा, आलिम पनाह, जैसा कि वजीर ने कहा है कि वो मुझे नहीं जानता और ना ही उसने आज से पहले मुझे कभी देखा है, बेशक मैं तस्लीम करती हूँ कि मैं इस बदबख्त की बीवी नहीं। इस मक्कार का पोल खोलने के लिए ही मैंने ये हरकत की है। हुजूर, सच तो ये है कि मैं ख्वाजा बशीर की बीवी हूँ। इस मक्कार वजीर से पूछिए कि उसने मुझ पर क्यों बहतान लगाया कि मैंने शाही चादर का तोहफा उसके हाथ भेजा था। आलम पनाह, हकीकत तो ये है कि वो चादर मैंने एक गरीब और बेसहारा औरत को दी थी। इससे वजीर ने किसी तरह से चादर तलब कर ली और मुझे बदनाम करने का मौका पा लिया। बादशाह ने कहर भरी नज़रों से वजीर की तरफ देखा। वजीर उसी वक्त रोता हुआ बादशाह के कदमों में गिर गया और अपनी गलती की मुआफ़ी मांगने लगा, लेकिन बादशाह ने ठोकर मारकर उसे परे हटा दिया और हुक्म दिया कि जल्लाद को बुलाया जाए। हबशी जल्लाद हाजिर हुआ। उसके हाथ में नंगी तलवार देखकर उसके रहे सहे होश भी उड़ गए। लपक कर ख्वाजा बशीर की बीवी के कदमों में गिरा और कहने लगा, ए नेक खातून, खुदा के लिए बादशाह से दरखास्त कर ताकि मेरी जान बख्शी हो। बेगम ने कहा, तुमने वो हरकत की है कि उसकी सज़ा मौत से भी बढ़कर है। तुमने मेरे प्यारे शौहर की मौत का सामान किया, लेकिन खुदा ने उसे बचा लिया और तुम्हें इस हलाकत के गड्ढे में गिरा दिया जो तुमने अपनी मक्कारी से मेरे शौहर के लिए खोदा था। अब ये बता कि वो शाही चादर तेरे तक कैसे पहुंची? वजीर ने मक्कार बूढ़ी का हाल सुनाया। उसी वक्त 2 सिपाही दौड़ते हुए गए और मक्कार बूढ़ी को पकड़कर ले आए। बादशाह ने हुक्म दिया कि बूढ़ी को आधा ज़मीन में गाड़कर उस पर खूनख्वार कुत्ते छोड़ दिए जाएं और वजीर को काटकर जंगल में फेंक दिया जाए ताकि जंगल के जंगली जानवर उसे नोच नोच कर खाएं और अपना पेट भर लें। इसके बाद शाही जल्लाद ने ख्वाजा बशीर को बादशाह के सामने पेश किया और अर्ज़ की, हुजूर, मैं जानता था कि ख्वाजा बशीर बेगुनाह है, इसलिए मैंने आपके हुक्म की तामील नहीं की। बादशाह ने खुश होकर एक कीमती मोतियों की माला जल्लाद को दी और ख्वाजा बशीर को गले से लगा लिया। चंद रोज़ बाद बादशाह ने ख्वाजा बशीर को वज़ीर ख़ास का दर्जा दे दिया और हासिद वज़ीर की तमाम जायदाद भी उसी के नाम कर दी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।